اور ہمارے نعیم اللہ شریف صاحب یہ جو جان ہے اللہ یہ اعظم پبلک اسکول ہو یا بیت المال ہو خدا تو ان کو ہمت و طاقت دے اللہ ان کے چہروں کو برابر فرما ان سے اللہ تو قوم کا کام لے لے میرے اللہ اے خدا جنہوں نے بھی اللہ پیسوں کی اے اللہ ہمارے عادت میں صاحب نے اناؤنس کیا عدیل صاحب نے کیا خدا تو ان کو ایک مثال بنا دے اس کے بعد ان دینے والے لوگوں کی مدد کرنے والوں کی اے اللہ ہر یہ کیا اے اللہ اجر تفریح ان کو عطا کرتے ہوئے ان کو بھی نصیب فرما اے اللہ جو غیروں کے آنکھوں میں کھٹکنے والے اداروں کو اللہ اور ترقی عطا فرما مسلمانوں کو بے حسی سے نکلنے کی توفیق جہالت سے نکلنے کی توفیق عطا فرما اللہ اے خدا ان کے حدود تعلیم کا اے اللہ جوہر خدا ان کے دلوں میں پیدا فرما ماں باپ کو اے اللہ اپنے ماں باپ کے اولاد کے واسطے صحیح تربیت کرنے صحیح اچھا انسان بنانے صحیح اچھا مسلمان بنانے اچھا شہری بنانے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے میرے اللہ اے اللہ جن امیدوں کے ساتھ اللہ یہ بنے کہ انہوں نے کیا ہے خدا ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو ان کے خاندان کو اللہ اجر کثیر نصیب فرما میرے اللہ اور خدا جو توقعات اس سے وابستہ ہے اے اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر تو عطا فرما اے اللہ خالی ہاتھ شروع کر رہے ہیں بھروسہ تیری ذات پر ہے اللہ تو نے فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ہم ایسی جگہ سے ضرورتوں کو پوری کریں گے جہاں وہ گمان بھی نہیں رہے گا اے اللہ بے شک تجھ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں توکل ادا کرتے ہیں محنت کرنا ہمارا کام کامیابی دینا کا تیرا کام ہے میرے مولا اے خدا ہماری اے اللہ چھوٹی سی محنتوں کو اللہ کا قبول فرما اے اللہ ہماری محنت ہماری کوشش یہ جو تھا سب ایک ذریعہ ہے اللہ ورنہ بھروسہ تیری ذات پر ہے ہمیں مایوس نہ کر تیرے دین کو آگے بڑھا دے تیرے جانے کی تعلیم کو آگے بڑھا دے خوف کو اے اللہ چمکتے ہوئے ستارے بنا دے کے اللہ ہماری خوابوں کو اللہ تو مکمل کروا دے میرے اللہ اے خدا نمائش سے تکلف سے بچا لے اے اللہ اس کے جتنے بھی ممبر یا سیکرٹری جو بھی ہیں اللہ ان میں تعاون پیدا فرما آپسی نااتفاقی جھگڑوں سے بچا بری نظر سے اللہ اس کی حفاظت فرما دشمنوں سے حاضری کے اسکول کو یا اس طرح کو اللہ محفوظ فرما اللہ اس کی وجہ سے اور بھی اللہ ہماری قوم میں جذبہ پیدا فرما ہوٹل اور شادی محل کھولنے کی بجائے اس کو کھولنے کی اللہ نے توفیق نصیب ہو جائے میرے اللہ اے اللہ وہ تعلیم دینے والا قوم کو بچاؤ اے اللہ جس کے سارے اے اللہ ماننے والے چاہیے اللہ اے اللہ جہالت سے ان کو نکال دے اللہ سارے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دے میرے اللہ اخلاق کی تعلیم اللہ تو ہمیں نصیب فرما تیرے نبی کا نام اے اللہ ملت بنانے سے زیادہ تیرے نبی کا نام روشن کرنے والے بنا دے دین کا نام اونچا کرنے والے بنا دے اے خدا ان سے خود تیرے نبی جیسے چاہتے ہیں ویسے اوصاف والا بنا دے تو جیسا چاہتا ہے ویسے بندے بنا دے اے اللہ اعظم بیت المال کو اے اللہ ان کے جو خاص کر وہ خدمت کرنے والے جو بچ چکے ہیں ان سب کی خبروں کو نور سے پر فرما اگر رسول احمد صاحب سے لے کر آپ تک کے بھی انتقال کرے اور جو زندہ ہے ان کو لمبی حیات نصیب فرما میرے اللہ اور اللہ سے قیامت تک باقی رکھ اللہ آنے والی ممکنہ اے اللہ دشواریوں کو دور فرما ہماری دعا کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جو پہلے قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میسور شہر کا مشہور و معروف ادارہ جسے اعظم بیت المال کہا جاتا ہے جس میں جو ہے اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ بھی ہے انہی کی جانب سے جو ہے اعظم پبلک اسکول جو ہے بہت ہی قدیم ادارہ ہے جو پچھلے 100 سال سے یہاں عمارت تھی اسے جو ہے پوری طرح سے ایک نئی عمارت کی شکل دی جا رہی ہے آج اس کا سنگ بنیاد ہے آپ سب یہاں حاضر ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ گزشتہ 21 سال سے یہاں جو عمارت تھی یہاں اعظم پبلک اسکول کے نام سے نا ادارہ چل رہا تھا اور یہ جگہ جو ہے مرحوم تروابی صاحب کی جگہ تھی ان کے بعد ان کے دونوں بیٹیاں اس جگہ کے وارث تھے انہوں نے اعظم پبلک اسکول کو بنا کوئی کرایہ اسکول چلانے کی اجازت دی تھی کیونکہ
डॉक्यूमेंटेशन में तुरावी साहब से आजम पब्लिक स्कूल को आने के लिए उनका यहाँ होना ज़रूरी था, क्योंकि ये दोनों है ना मुकामी अमेरिका के होने की वजह से गुज़िश्ता साल इन चीज़ों को है ना बाकायदा कानूनी तौर से आजम एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से इस चीज़ को है ना ट्रांसफ़र होने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अधूरा ख्वाब जो था कि आजम पब्लिक स्कूल की नई इमारत, इसके लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने संग बुनियाद रखी है। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये अपने काविशों और कोशिशों से तालीम को आम करते हुए हज़ारों लाखों बच्चों के लिए एक अपने मुस्तकबिल को बनाने की जगह बने। और जनाब तुरावी साहब के मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हुए उनके जो जनाबा डॉक्टर वसीमा फिरदौस साहिबा इस जगह को है ना तालीम के लिए उन्होंने है ना जो आजम पब्लिक स्कूल को अब आजम बैतुल माल के लिए दिया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि जो इस मकसद के साथ इस कार्रवाई को शुरू किए हैं, इसमें जल्द से जल्द हमारे सामने नतीजे आए। मैं अल्लाह से दुआ को ये पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट स्कूलों में तैयार भेजी जा रही है, तो वजह क्या है? नहीं, ये एक तफसील से बात करने वाली चीज़ है, तो मैं समझता हूँ कि इसे तफसील से बात करने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ उर्दू तालीम है तो वहाँ बच्चों की तादाद में बच्चे की तादाद घटती हुई नज़र आ रही है। तो जहाँ हमने बैल लैंग्वेज किया है, उर्दू मादरी ज़बान को फर्स्ट लैंग्वेज रखते हुए इंग्लिश मीडियम लाया है, वहाँ पे है ना बच्चों की तादाद बढ़ रही है। तो ये मिल्लत के लिए और माशरे में है ना इस बात को है ना गौर फिक्र के साथ हमें लेना है कि है ना हमें किस तरीके की तालीम को आम करना है। तो ये हुकूमत के साथ हमारा किस तरीके से समझौता होगा और उर्दू स्कूलों के तरक्की में आम तौर से अवामी सतह पर या फिर है ना मसाजिद इसकी निगरानी करने के लिए जिस तरीके से आगे आ सकती है, उसके बाद है ना इसके लिए कोई फैसला ले सकते हैं। हल्का नरसिंह में ये इमारत बनने जा रही है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कितने जल्द से जल्द ये इमारत जो है बनकर तैयार हो? देखिए, आज इसका काम का आगाज अल्लाह के नाम से हमने शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द, क्योंकि किसी भी एक इमारत को बनने के लिए वक्त लगता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि मिली इदारा होने की वजह से पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक खुलूस के साथ इस काम का आगाज़ हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द या समझो 1.5-2 साल के अंदर इस चीज़ को मुकम्मल करते हुए 2 साल के बाद से है ना रेगुलर स्कूल यहाँ शुरू होने की उम्मीद है। रियाज़ अहमद साहब की सरपरस्ती में नौजवान जो खिदमत कर रहे हैं, जैसे अदील हो या शरीफ साहब हो, सर उनसे क्या उम्मीद हो पिछता क्यों? सिर्फ अहदा मायने नहीं रखता, क्योंकि आज के इस जलसे में इस बात को भी आम किया गया कि जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है, जो खिदमत करना चाहता है, हर किसी को है ना यहाँ पे है ना लेकर है ना काम करने के लिए वो आगे हैं। और ख़ास तौर से आजम बैतुल माल जो 50 साल की एक तारीख हमारे सामने है, तो जिस तरीके से काम करते आए हैं और जिस उम्मीद से वो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हीं के कोशिशों से आजम पब्लिक स्कूल हमारे दरमियान आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह को हासिल करने के बाद इसकी नई इमारत का काम आज आगाज़ हुआ है। तो इसमें बहुत सारे हमारे नौजवान आदिल मेकरी, हमारे बहुत सारे साथी इसके साथ जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी कोशिश और जो बुजुर्ग अहबाब इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके दुआओं के साथ ये बाकायदा एक नतीजा लाएगा। सर, इस खैर काम में, इस अजीम काम में जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका नाम रिजवान अरशद साहब है, एक नौजवान डायनामिक लीडर कहा जाता है, वो भी इस काम में जो है बराबर के शरीक रहे हैं। इनका ताल्लुक जो है मैसूर शहर से है, मगर ये रुकन असेंबली बैंगलोर शिवाजी नगर से है। तो ये बिल्कुल जो है हमारे साथ
हाथ से हाथ मिला खड़े हुए, क्या कहना चाहोगे? ये हमारी खुशनसीबी है कि जहां इस काम के लिए मुझे मदऊ किया गया, एक नहीं बल्कि दो ताकतें इस फंक्शन में जुड़ी हुई है। और अगर रिजवान अरशद साहब के बारे में अगर मैं कुछ कहना है तो उनकी जो दूरअंदेजी है, शिवाजी नगर के हलके में जहां गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां के लिए बहुत सारा पैसा हुकूमत से और CSR से लाकर है ना बहुत सारे तालीमी इदारों को है ना उन्होंने एक नई रुख देने की कोशिश की है। तो वही एक हमारे लिए भी एक क्या है कि है ना जिस तरीके से उनके काम को लेकर हमें उससे है ना इस चीज़ का एक अंदाज़ा लगा के है ना कोशिश करने से हमें नतीजा मिल सकता है। शहर बेंगलोर एक समंदर है, तो वहाँ है ना तिरने वाले को और शहर मैसूर में एक किनारे में तिरने वाले को एक नहीं कर सकते। तो इस वजह से बहुत सारे मिली काम उनके हलके में इनसे भी हुए हैं और उम्मीद है कि जहाँ जो चीज़ करने के लिए खुलूस और मोहब्बत की ज़रूरत है, अहदे की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे एक दावत पर है ना रिजवान अरशद शहर मैसूर आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने इनके हलके में जो काम किया है और यहाँ हमारे से जो काम हो रहा है, तो जिस तरीके से हम दोनों हमारे तालमेल में है ना मिली इदारों की ताकत बन सकते हैं, वो बनने की कोशिश करेंगे। साहब, आपका ताल्लुक शहर मैसूर से है, आप यहाँ बड़ी खुशी से शरीक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे एक ऐसे प्रोग्राम के लिए मदऊ किया गया है। जनाब तनवीर सेठ साहब ने, हमारे आरिफ मेकरी साहब ने, आदिल मेकरी ने एक संग बुनियाद जो एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आज रखी जा रही है, जो पिछले 100 साल से एजुकेशन फील्ड में अपना एक 21 साल से यहाँ पे एक स्कूल चल रही थी। लेकिन आजम बैतुल माल और आजम जो ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट, इसके खिदमात तकरीबन 50-60 साल 51 साल के रहे हैं। और मैसूर शहर के कई नौजवान इनकी मदद से, इनके हौसला अफजाई से आज तालीम याफ्ता होकर पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आज जिस तरीके से इस कौम को तालीम की ज़रूरत है, उसमें किसी भी तालीम के काम में अगर कहीं भी मुझे बुलाया जाए तो मैं बड़ी खुशी के साथ चला आता हूँ। मैसूर तो मेरा अपना शहर है, तो तनवीर सेठ साहब ने मदऊ किया तो मैं यहाँ चला आया। इससे अच्छा क्या प्लेटफॉर्म होगा कि पिछले 3 घंटों से हमने तालीम पर गुफ्तगू की है, तालीम की अहमियत पर चर्चा की है, तालीम कैसे आम करें हम लोगों में, उस पर एक इज्तिमाई तौर पर तालीम को पहुंचाने का एक बेड़ा किस तरीके से उठाया जाए, इस पर गुफ्तगू हुई है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ ये एक स्कूल नहीं जिसमें वसीम फिरदौस साहिबा ने और उनके अहल ने जो वक्फ की है इस ज़मीन को, तालीम के इरादे से वक्फ की है, उनके खिदमात को भी सब लोगों को सराहना चाहिए और उनको देखकर बहुत सारे लोगों का हौसला और बुलंद होना चाहिए कि तालीम के लिए आएँ और तालीम के लिए कंट्रीब्यूट करें, सरमाया लगाएं और पूरी कौम एकजुट होकर एक एजेंडे पर आए कि हमारा बच्चा तालीम याफ्ता होगा और तालीम के ज़रिए ही इस कौम की खोई हुई खोया हुआ उस विखार को हम वापस हासिल कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये होगा और हम सब मिलकर, मैं तनवीर सेठ साहब और सारे दूसरे कायदीन मिलकर तालीम पर पूरी रियासत में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे इंशाअल्लाह। रिजवान अरशद साहब, अगर कहा जाए एक जुमले में तालीम किसी भी शख्स के लिए कितनी जरूरी है, तो आपका क्या कहना है? अगर उस शख्स की पूरी जिंदगी को कारसाज बनाना है, उसे मीनिंगफुल बनाना है और हर इंसान को अपने हुकूक की पहचान होनी है, क्योंकि आइन में हुकूक मिले हैं
لیکن کیا حقوق ملے ہیں اس کو پہچاننا بھی ہے تو بھی تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم کے بغیر انسان اپنی صلاحیتوں کو ابھار نہیں سکتا, نکھار نہیں سکتا. اس کے اندر جو کیپیبلٹیز ہے اس کے تحت وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تعلیم کے ذریعے وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ میرے اندر کیا قوتیں ہیں, میرے اندر کیا طاقت ہے, کیا صلاحیت ہے, اس حساب سے میں خدمت انجام دوں گا. تو جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو ہماری حقیقت ہم خود نہیں پہچان سکتے, تو دوسروں کو کیا ہم بول سکتے ہیں. تو تعلیم بہت ضروری ہے, اور اگر یہ قوم تعلیم میں یافتہ ہوتی تو اس کے اندر جو کیپیبلٹی ہے, جو صلاحیت ہے, اس سے بہت بڑی خدمت پوری دنیا سے کو ہم انجام دے سکتے تھے. تو بنیاد ہے تعلیم, اور اگر بنیاد نہیں ہے تو کوئی عمارت ٹک نہیں سکتی, ڈھیر ہو جاتی ہے. تو یہ بنیاد تعلیم ہے, تو اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب مل کر آئیں, کام کریں. انشاءاللہ آنے والی نسل تعلیم یافتہ ہوگی اور اس دنیا کی شکر تک پہنچنے میں کامیاب رہے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محترم. جی محترم, اعظم بیت المال ایک ادارہ جو میسور شہر میں پچھلے کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہے, 51 سالوں سے. وہاں سے جو ہے بہت سارے طلباء و طالبات جو ہے پڑھ کر ایک اچھے مقام پر پہنچے ہیں. آج جو ہے اسی کے نام سے اعظم پبلک اسکول, جس کی جو ہے تعمیر کے لیے ایک سنگ بنیاد رکھی ہے, وہ آپ سب جو ہے یہاں پر کھڑے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کس کے تعلق سے؟ آج کی جو آج کہتے ہیں محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہماری خواہشوں کو, ہماری کوششوں کو آج کا دن دیکھنا نصیب فرمایا. اس کامیابی کے پیچھے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس کے بعد میں ہمارے پورے ساتھی, پوری ٹیم, کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اور خصوصاً نوجوان جو اب شریک ہوئے ہی ٹرسٹ میں آئے ہی, ان کی کاوشوں سے, ان کی محنتوں سے یہ دن دیکھنے نصیب ہوا. اور اللہ کا فضل رہا کہ کافی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے اور اپنی رائے سننے کے لیے پہنچے تھے. سر 50 پر 1 سال کا سفر ایک تاریخی سفر رہا ہے. جی, اس کے جو بنیادی مہمان ہیں ان کو خراج عقیدت کس طرح ملے, بنیاد جس نے رکھی تھی ایسے لوگ جو محروم ہو چکے ہیں ان کو کس طرح خراج عقیدت پیش کریں گے؟ اخراجات کیا, ان کے لیے دعا کے سوا اور ہم یہاں سے بھیج نہیں سکتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ان کو جنریشن ٹوگیدر اس کا ثواب دے, وہ دعا کر سکتے. آگے جا کر کیا سوچے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس کو اور اچھا بنائیں, بہتر بنائیں اور اس کو برقرار رکھیں؟ یہ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو, خاص کر ہمارے رحیم اللہ شریف صاحب, ہمارے عبد القیوم صاحب, تنویر صاحب, عرفان صاحب, جب شروع میں نسیم الدین صاحب, ہمارے رحمت اللہ شیخ صاحب جو ٹریجر رہی ادارے کے, ان کے اللہ تعالیٰ طاقت دے, قوت دے اور ان کو اس کام میں آگے بڑھانے کی ضرورت کرتے, اور نئے نئے ممبرس کو جوڑیں. اور ہمارا تو ہمارے لیے صرف دعا کرتے رہیں, یہی دعا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تاجے ہمیشہ قائم رکھے. بہت شکریہ محترم. بہت بہت شکریہ. سر, ترابی میموریل کی جانب سے جہاں پر آج کھڑے ہیں آپ, وہ زمین کو آپ نے عطیہ دیا ہے, یعنی وقف کیا ہے, اور آپ نے دوران تقریر اس بات کو زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا زمین دینا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن تعلیمی ادارہ چلانا بڑا مشکل ہے. تو کیا کہیں گے سر آپ؟ نہیں, یہ ضروری, وہ تو بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعظم بیت المال کتنا اچھا کام کر رہا ہے, اور جو والنٹیئرز ہیں اور یہ سب کافی لوگ, یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, پروفیسرز ہیں, جو خود ان کی زندگی جو ہے تعلیم میں وقف کر دی ہے, ٹائم انہوں نے بہت گزارا ہے. یہ لوگ بہت اچھا کام چلا رہے ہیں. یہی مشکل کا کام ہے, آسان جو تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. انشاءاللہ پوری کمیونٹی کی طرف سے اس کا ہم سپورٹ کرنا ہے, اور اس کو یہ بلڈنگ کو تعمیر کر کے جو ہے بچوں کے لیے یہ آگے بڑھانا ہے. سر, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, یہاں کے حالات کو لے کر کس قسم کی فکر کی جاتی ہے سر, خصوصاً امت کو لے کر؟ جی بالکل, ہم بھولے نہیں ہیں, ہم سوچتے رہتے ہیں جب بھی ہم ملتے ہیں کہ بھی مسلمانوں کی حالت کیا ہے انڈیا میں جو بھی ہو رہی ہے, اور ہم کیا کر سکیں گے. یہ ہمارا جو ہے اس کی بات چیت ہم سب کے دماغ میں ہر وقت ہوتی ہے. تو
ये तालीम करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है हर रकम से आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए हम ये चीज़ को हम ऐसी अहमियत दे रहे हैं। इनके दादा ने कहा जब एजुकेशन 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 वही एक चीज़ है जो तो पहला बंदे के हिसाब से क्या? कर सकती है। जी मोहतरम, आज के इस दौर में जहाँ पर ज़मीनों के मसले को लेकर जो है एक ही घर में बहुत ज़्यादा कशमकश का आलम देखने को मिलता है, वहाँ पर इस तरह आप जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उसको लेकर जो है और ऐसे लोग जो कौम के इदारों को लेकर जो है वो भी आगे आए, उनके लिए आपका क्या कहना है? जी हाँ, ये आपने बड़ी अहम बात की है। कई फैमिलीज़ में, ख़ानदानों में अनबन आ जाती है प्रॉपर्टीज़ के मामलों में। ये चीज़ जो है, मैं ये कहता हूँ कि हम खुद जो हैं इस तरह से हम सोचना है कि जो भी हम हैं हम खुद हमारी मेहनत से हैं। ये नहीं कि हम ये चीज़ विरसे में कुछ मिले या इनहेरिटेंस में मिले, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये हम हमारे खुद के मेहनत से होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी तो हम हमारे साथ वापस नहीं ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात तो लेकिन ये जो है हमारे बाद भी चलेगी ना, तो फिर जो ज़रूरत नहीं है वो रखना नहीं। सवाब जारिया है। हाँ एग्जैक्टली। आपका मैसेज क्या है मैडम? हाँ वही कि वो जो भी है वो whatever we are given, there's a limit to what we use. जो यूज़ करते हैं वो कम है ना, और जो यूज़ नहीं कर सकेंगे तो वो might as well donate. Nobody is taking anything with them to the grave. Just our Yeah. actions, that's it. ये हमारी भी ये थी कि हम हमारे पेरेंट्स से कोई इनहेरिट नहीं करना चाह रहे थे, और हम हमारे बच्चों को भी जो है जो सबसे बेहतरीन चीज़ दे सकते थे वो तालीम थी, तो हम उनको कोई और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे बढ़ के अपनी खुद मेहनत के साथ वो कुछ कर सकते हैं। जी, जो प्रपोज प्लान है आपके पीछे जो प्रोजेक्ट जी सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में हम किस तरह इसको देख पाएंगे? इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिखता है। ये हमने पहली बार देखा है, इसका जो फ्रंट एलिवेशन हमने नहीं देखा था, सिर्फ ग्राउंड प्लान्स देखे थे। ये देखकर ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह अगर ये इस तरह बन जाए माशाल्लाह बहुत अच्छा ये रहेगा। और फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो इंशाल्लाह उनके नाम से ईच ऑफ देम कुछ डोनेट करेंगे, जो फिर उनको ख्वाहिश हो कि वो वापस आके दे कैन कंटिन्यू। बहुत अच्छी फिक्र है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, आज का जो प्रोग्राम है वो तारीख के पन्नों में सुनहरी हूफों में लिखे जाने वाला है, क्योंकि इस तरह का काम जो है हमारे पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। इसमें आपने जो है बड़ा अच्छा और बेहतरीन किरदार निभाया है, तो क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? देखिए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो कौम के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। प्रोफेसर रियाज अहमद साहब जो हैं आज़म बैतुल माल के सेक्रेटरी, ही इज़ द फेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक फरिश्ता सिफत इंसान है, मेरे दादा हुजूर के बहुत ही करीबी रह चुके हैं और मेरे ख़ानदान से बहुत ही करीबी ताल्लुक़ात हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रोफेसर M.A. खादर साहब मरहूम मैसूर की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती रह चुके हैं। उनके बेटे ज़फ़र महमूद साहब और M.M. तुराबी साहब जो ये मकान के मालिक थे, उनकी बेटी वसीम फिरदौस साहिबा और उनकी बहन जो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकी, डॉक्टर तस्नीम फिरदौस साहिबा, मैं उन सब लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए, आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी आज के ज़माने में विच इज़ रियल एस्टेट वाइज अ वेरी कॉस्टली एंड प्रीमियम बेस्ड प्रॉपर्टी, उसे और इस जगह पर जो एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, उसे कौम की तरफ अगर आप वक्फ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आगे की नस्ल के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। आपके दादा मरहूम प्रोफेसर नकवी की जो तालीम थी, उनकी जो बात थी कि उम्मत मुस्लिमा की अगर बेहतर है तो वो तालीम 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 है, तो आप इस बात को अमल करते हैं तो क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो अर्लियर जनरेशन्स उनके जो ख़यालात रह चुके हैं, उसे अगर हम लोग 10% भी अगर फॉलो कर लें तो बहुत है। वो लोगों में बरकत थी, उनकी जो सोच थी वो शायद हम लोगों में उतना नहीं आ सकी है। अगर इफ़ वी गेट इंस्पायर्ड बाय देयर टीचिंग्स एंड फॉलो एनीथिंग, आई थिंक वी आर डूइंग आवर पार्ट। जैसा कि डॉक्टर वसीम फिरदौस साहिबा ने कहा, दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू फॉर द कम्युनिटी। वी आर लीविंग दीज थिंग्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन
and I think this is a very clear message from their family to Mysoreans, and on behalf of the Mysore community, I would want to thank you both and your sister in particular for this generous contribution. Mysore will always be grateful to your family for this. दिल ये जो इस प्रोजेक्ट के लिए आपने अपने तरफ से यानी आपके खानदान की तरफ से 10 लाख का एक हथिया दिया है। वो मेरे वालिद साहब का हुक्म था, तो बेहतर है कि वो बात करें उसके बारे में। मैं मोहतरम, आज इस अजीम प्रोग्राम में, इस खैर के काम में जो है 2 MLA एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, क्या महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। रिजवान अरशद साहब मेरे लिए एक बड़े भाई हैं। तनवीर सेठ साहब जो हम सब लोगों के लिए एक मेंटर है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन जब मैं रिजवान अरशद साहब के पास गया दावत लेके, उन्होंने ही डिड नॉट टेक इवन अ सिंगल मिनट टू डिसाइड। आज उनका स्केड्यूल बहुत टाइट था, फिर भी वो आ गए, और ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिली के साथ जो उनके करीबी ताल्लुकात हैं वो आगे आज दिखे हैं आज हम सब। और जो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए थे उनके लिए मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े रहे, एक गाइडेंस उनसे मिलती रहे। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये एक इदारा है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोफेसर्स ये इदारे का हिस्सा है। वी हैव द बेस्ट माइंड्स इन आवर ट्रस्ट, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी मेक यूज़ ऑफ दैट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चलते वी विल यूटिलाइज दैट इंशाल्लाह। Actually, if I can acknowledge 2 more people, Sister Yasmin and Sister Aisha. I think women don't often get the credit they need, and but mashallah, the way they run the school, it's a source of pride. We feel good that the school is in the hands of such competent and very dedicated individuals. So mashallah, everybody is very dedicated and very praiseworthy, but I think women, including his wife Sana, who sacrifices a lot so he can do so much community service, all of them deserve that. बहाते हैं। इस आज़म के साथ ये इदारा शुरू हो गए, और इसके साथ जब मैं मुख्तसर सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करूँगा और जो शख्सियत इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका तारुफ मैं आप कराऊँगा, तो आप ये यकीन मानेंगे कि मैं जो शेर पढ़ा हूँ उन पर 100% आता है। मुनव्वरुल्लाह तुराबी साहब के ये मेमोरियल आज़म पब्लिक स्कूल उनके नाम से आज़म पब्लिक स्कूल रखी गई है, चूँकि ये जगह जो है उसके मालिक वही हैं। वो आबाई जगह है, ये जगह जो है एक आबाई जगह है, उनके नाम से पब्लिक स्कूल शुरू हुई है। वो राजी साहब यहाँ के एक मारूफ और मुमताज़ शख्सियत 17 साल 51 साल उसके और अजमतों की दास्तान मुख्तसर तौर से आपके सामने 51 साल गुजर चुके हैं आज़म बैतुल माल। दरअसल ये 1970-75 में रमज़ान मुबारक में इसकी शुरुआत हुई, जबकि नसीरुद्दीन साहब एक लैलतुल क़द्र की रात जो उन्होंने जो हज़रात जमा हुए थे उनमें से एक शख्सियत उठकर 10 रुपये उस वक्त जमा किया बैतुल माल की तरफ। तो ये पहला चंदा है जो आज़म बैतुल माल को आया है। इसके बाद जो है वो उसी रात तकरीबन डालें मैम, डालें, आप डालें, बिस्मिल्लाह बोलो, डालें मैम, बिस्मिल्लाह। दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। भाई खड़े हुए थोड़ा क्लैप्स मारेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा क्लैप्स सर, थोड़ा ऐसे टर्न कीजिए सर, टर्न कीजिए। हाँ सर, तमाम यहाँ देखिए सर। हाँ
माशाल्लाह अल्लाह मुबारक करे आपको। नसीम साहब आजम बैतुल माल के बारे में कहने के अभी खुल को नहीं बोले, इत्तिबा जरूर है कि आजम बैतुल माल जो पीछे से जो खिदमत कर रहा है उसके वास्ते बेइंतहा अर्ज़ आपने की है, खासकर प्रोफेसर आजम साहब और हमारे साजिद साहब और नूर अहमद खान साहब ने जो आज उसकी जगह बहुत सारी फैली हुई हैं, उसके लिए माली मदद की जरूरत है। बहुत ज्यादा कोशिशें कर रही, बाकायदा दे रही, लेकिन जो फायदा उठा देता है इस तरह सब पत्नी गली से लेकर के चले जा रहा है। आज बहरीन में ही, कुवैत में ही, कतर में ही, अमेरिका में ही, सब जगह ही यहाँ के पड़े हुए अच्छे पोस्टा में ही उनकी 1 अल्लाह का मतलब 1 लाख रुपए सालाना दे को भेजता ही ख्याल करते हुए बातें नहीं करते। लिहाजा अब ये जो बंदा है ये भी बैतुल माल के वास्ते तरफ नहीं मदद और बैतुल माल तो एक उसके मदर है, ये उसका सब छोटे बच्चे ही एक मुस्तकिल कमेटी है इसकी, अब डोनेट तो कर जा रही है, इसके बाद इसे आगे बढ़ाना एक खौफ का काम है। और उनके पास अब क्या अभी नहीं है, नसीमुद्दीन साहब बोलते मैं घर बन लो, मेरे पास क्या अभी नहीं है, नहीं मुल्ला शरीफ साहब भी क्या भी बच्चों की तालीम नहीं। लिहाजा ये कौम का मदरसा है, लिहाजा कौम के स्कूल इसलिए इसे आजम पब्लिक स्कूल करके बोलिए, लिहाजा इसमें आगे बढ़ाओ। खासकर आईदा जुमा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर के पैदाइश की खुशी में खाने खिला रहे हैं और छानियां निकल रही, ये बस मर्तबा कुछ ऐसा काम करो जिससे हुजूर की रूह खुश हो जाए और हुजूर के उम्मती होने का सबूत दे दें। साहब तो बोले हमें क्या कि इंशाल्लाह तो उम्मीद करता हूँ, तो मैं यकीन चाहता हूँ उनसे कि उम्मीद छोड़ दो, उम्मीद पर दुनिया के लिए यकीन के साथ आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बहुत कुछ करें, आप आपकी तरफ से पहले पेश करो और इंशाअल्लाह आपका देखा देखिए आपके चाहने वाले, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले अल्लाह तबारक तआला जरूर देंगे। अभी बहुत जगह गई मगर हाल ही अब ऐलान तो नहीं, जैसा उन्होंने 10 लाख दिए तो कम से कम 10 में जो भी 20 दे सकते ही अल्लाह के बाद है। आपके पास तो बहुत कुछ है, अल्लाह तबारक तआला देंगे। और ज्यादा स्टेट को गया तो जो बैठे मिलेगा प्रोफेसर रशीद अहमद साहब है, बच्चे अमेरिका में इंग्लैंड में सब्जी उन्होंने हमारे भी बल्ला कीजिए जरा, अब तो पहल करो, फिर उसके बाद जो भी तुम न देगा उसका सवाब आपको मिलेगा, लोहे की शक्ल में, ईंधन की शक्ल में, या फिर सीमेंट की शक्ल में, लकड़ी की शक्ल में, या मजदूरी की शक्ल के अंदर बैठी हमारे फातिमा साहिबा भी बैठी। अल्लाह के वजह से अल्लाह का दिया लगता है और रखा को खत्म करे जब शरत नहीं लगे उनका है, उनके तमाम अहवाज का भी है जो दे सकते हैं। लेकिन ये क्या है, जब मदरसे को जाकर चंदा मांगो देते, मस्जिद को जाकर मांगो देते, स्कूल को तो हम क्या देना क्या है ना हजरत। और दूसरी बात क्या रहता है, स्कूल जब खुल जाती है तो हमारे स्कूल करते तो फीसा कभी देखते बनते रहते ये हम मकान की दूसरी जगह फ्री मिलती थी, यहाँ मिलती थी, यहाँ तो पैसे, हालांकि रोड पे तो जाओ नहीं तो दूसरे इसे जाओ उसको खाली स्टॉल को जाओ, डोनेशन दे दो तो बड़ी सीटिंग को भी और फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड को यहाँ देने रहते तो पब्लिक कैसा तरक्की कर दे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ जो एमएलए बैठे, चेयरमैन बैठे या अल्लाह प्रोफेसर बैठे और नूर अहमद साहब के बच्चे बारी नाम अच्छा गवा रही, इन लोगों से खुद बंदा ले जा हमारे रास्ते क्या भी जल्दी की जरूरत नहीं, फिर भी हर एक का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर हुआ तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक तआला इसे जल्द अज जल्द 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह पूरी करेगा।
अजीब के भी कभी कंपनी है ना, हमें ये खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाती कि 700 गुना देता हूँ। मसलन लजीर के कुरान वालों फी सबीलिल्लाह कमसल हब्बा अंबतत सबअ सनाबिल, उसकी मिसाल ऐसी है, ये दाना तो फैलेगा चावल का गेहूं का, तो उसमें 7 वालियां निकलती, हर वाली में नियम 100 उड़ाने होती है। खुदा का कुरान का एजाज है। देखो तो ये कुछ 700 मिले तो तुझे भी मिलेंगे। कभी भी याद रखो, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला गरीब नहीं हुआ, फकीर नहीं हुआ, और शादी के लोग फकीर हुआ, सब हिसाब नहीं खड़ा। अल्लाह से दुआ है जितने भी बैठे हैं सबको अल्लाह कबूल करे, और हमारे खास कर जिसने हमें लीडर चाहिए, उन्होंने इलेक्शन के लीडर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उम्मत को लीड करने वाले हुआ, चाहे कुर्सी हंडे या कुर्सी जान दे, क्योंकि तुम्हारे से तवक्को थी या आपका इदारा, खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो ये इदारा आप अपनी तरफ से बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेकर कंप्लीट कर दिखाओ, हम दुआएं देंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है इसकी मेहनत करने वाले लोगों को, इसे डोनेट करने वाले लोगों को अल्लाह इसे सदक़े जारिया बनाए और क़यामत के बाद इसका अल्लाह उनको नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।